Hello friends, this is C.S. Sujal Desai working as a faculty at Navkar Institute. Friends, today we will discuss one of the important method of inventory valuation in chapter inventories. The name of the method is adjusted selling price method, which is also known as retail inventory method. Friends, this method is covered under the head non-historical cost method. Non-historical cost means it's not original cost. We'll try to understand the same later on. Right now, let's focus on this. Why this method is also known as retail inventory method, as I told you. This method is known as retail inventory method because this method is used by retailers. Sir, why this method is used by retailers? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा. Because they are not able to ascertain cost of individual items. If I am trying to give you an example of retailer, then let's take an example of provision store. A person who is running a provision store is dealing in n number of varieties, is dealing in various products. Say for example, a person who is running provision store is purchasing and selling, is buying and selling shampoos. Shampoos में भी अगर आप बात करो तो he is buying and selling different brands of shampoos like Clinic Plus, Head and Shoulder, Pantene Pro Vitamin, Sunsilk, etc. Then he is buying different types of soaps also like Lux, Liril, Santur, Hamam, etc. अब हम डिफरेंट ब्रांड्स में भी अगर बात करें तो उसमें भी अलग अलग वैरायटीज होती है. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोप ऑफ लक्स सोप, देन देयर इज 10 ग्राम लक्स सोप, देन देयर इज से फॉर एग्जांपल 50 ग्राम लक्स सोप, देन देयर इज से फॉर एग्जांपल 100 ग्राम सोप. सो उसमें भी अलग अलग वैरायटीज, हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होगी वो डिफरेंट होगी. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर रिटेलर हर एक वैरायटी का, हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल अकाउंटिंग करने जाएगा तो इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम and it is not possible for retailer because retailer is dealing in such kind of thousands of products or even more than thousands of products. So what retailer is going to do? Retailer is going to identify selling price of all the inventories, and after identifying the selling price of all the inventories lying in his store, he is going to deduct one average rate of profit, and the balance amount is known as cost of all inventories. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ एवरेज प्रॉफिट रेट. वाई इट इज नॉन एज एवरेज प्रॉफिट रेट? बिकॉज फ्रेंड्स, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो इट इज सेलिंग प्राइस ऑफ एंटायर इन्वेंटरीज लाइंग इन द स्टोर. अब हर एक इन्वेंट्री का रेट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट होगा. तो मुझे ओवरऑल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट आई विल डू, आई विल आइडेंटिफाई एवरेज प्रॉफिट रेट. यानी कि किसी प्रोडक्ट पर 5% प्रॉफिट मिल रहा है, किसी प्रोडक्ट पर 6% प्रॉफिट मिल रहा है, किसी प्रोडक्ट पर 7% मिल रहा है, तो आई विल कम टू द एवरेज रेट, से फॉर एग्जांपल 6.5%, एंड दैट एवरेज प्रॉफिट रेट इज गोइंग टू बी डिडक्टेड टू गेट द कॉस्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्रीज. एंड दिस कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कवर्ड अंडर द हेड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट. बिकॉज यहाँ पर जो कॉस्ट मिलेगा वो हर एक इन्वेंट्रीज का, हर एक प्रोडक्ट का हमें एक साथ कॉस्ट मिलेगा, ना कि किसी इन्वेंट्री का, ना कि किसी प्रोडक्ट का हमें इंडिविजुअल कॉस्ट जानने मिलेगा. तो अगर मुझे यहाँ पर कोई पूछे कि हेड एंड शोल्डर से फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर 100 ml शैम्पू, इसकी कॉस्ट कितनी, तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें हेड एंड शोल्डर आ गया, इसमें सनसिल्क आ गया, इसमें क्लिनिक प्लस आ गया, इसमें संतूर सोप आ गया, इसमें हमाम सोप आ गया. हर एक इन्वेंट्रीज की कॉस्ट उसमें एक साथ आ गई, and that's why it is covered under the head non-historical method. I hope the picture is very clear to all of you. So this is basically a theoretical part. Now we will switch over to the practical part which is related to this method. Let's refer the question. Basically this is a question जो आपके स्क्रीन के सामने है. Messrs XYZ are in retail business. Following information are obtained from the records for the year ended 31st March 2016. They are in retail business. You can underline goods received from supplier. Ultimately, we can call it purchase. It's a 15,75,500 rupees. It is subject to trade discount and tax. ब्रैकेट में लिखा हुआ है subject to trade discount and tax. इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये जो परचेज का अमाउंट दिया हुआ है दिस इज बिफोर कंसिडरेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्स. मतलब अभी भी ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स इसके ऊपर कंसिडर करना बाकी है. Trade discount, the rate of trade discount is 3% and the rate of sales tax is 11%. Friends, remember in this question we are right now buying. This is the amount of purchase, not sales. Packaging and transportation charges, this is ultimately we can call it it's a purchase cost. 87,500 which is going to be added into the cost of purchase. Sales during the year, it's a 22,45,500 rupees.
and sales price of closing inventories 2,35,000 rupees. Friends, remember in this question there is no opening stock, यानी हमारे पास सेल करने के लिए जो भी इन्वेंट्री है वो यही है जो हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 15,75,500. अब सीधी सीधी बात करें कि ये जो मैंने सेल्स किया ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500, ये मैंने कौन से वाले स्टॉक में से किया होगा? ऑफ कोर्स इसी 15,75,500. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा, जो अभी भी अनसोल्ड है, जिसको अभी भी बेचना बाकी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो किस में से होगा तो डेफिनेटली वो भी इसी परचेस में से होगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई इन्वेंट्री था ही नहीं. तो हमने जो सेल किया वो भी इसमें से किया है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है वो भी इसी में से बचा है. अल्टीमेटली कोई मुझे पूछे कि ये परचेस किया हुआ स्टॉक, ये 15,75,500 रुपीज का स्टॉक आपने टोटल कितने में सेल किया, या तो आप टोटल कितने में सेल करोगे, तो टोटल सेल्स वैल्यू इज 22,45,500 जो हमने सेल कर लिया उसकी सेल्स वैल्यू, प्लस ये जो अभी भी सेल करना बाकी है उसकी सेल्स वैल्यू. जो सेल किया वो भी इसी में से किया है, और जो सेल करना बाकी है वो भी डेफिनेटली इसी में से होगा. यानी ये 15,75,500 रुपीज का इन्वेंट्री टोटल हम इतने अमाउंट पर सेल करेंगे. इन दोनों का समअप करोगे वो आपको मिल जाएगा. We have to calculate the cost of inventories using adjusted selling price method. Now let us refer the solution. It is very easy. First of all, we will determine the cost of purchase. If you remember, friends, whenever we calculate the cost of inventory, in the cost of inventory, the meaning of the word cost includes not only purchase cost, not only purchase price, but it includes all purchase related expenses also. So let us calculate the cost of purchase. Cost of purchase will include purchase price, जिस प्राइस पर हमने परचेज किया वो, प्लस purchase related expenses like carriage inward, octroi, freight, etc., etc. Goods received from supplier, you can see it's a 15,75,500. It's a basic purchase price. लेस ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज वी आर बाइंग, तो सेलर हमें ट्रेड डिस्काउंट देगा, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 3%, इसका 3% करेंगे तो बैलेंस अमाउंट ये आ जाएगा 15,28,235. आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेटर यूज कर रहे हो. एड सेल्स टैक्स. व्हाट इज द रेट ऑफ सेल्स टैक्स? 11%. इट इज चार्ज बाय सेलर फ्रॉम बायर, बिकॉज वी आर बाइंग, तो सेलर हमारे पास ये चार्ज करेगा, तो अल्टीमेटली मेरा परचेस प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 11%, तो 15,28,235 का इफ यू डू 11%, इट विल बी 1,68,106. सो माई टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, तो इसको मैं नहीं बोलूंगा, बट दिस इज माई इनवॉइस प्राइस, यानी सेलर हमें जो बिल बना कर देगा वो इतनी अमाउंट का होगा, 16,96,341. But for the purpose of cost of inventory, for the purpose of calculation of cost of inventory, cost includes these purchase price plus purchase related expenses, which is पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 87,500. इसको ऐड कर देंगे तो फाइनली आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, माय फाइनल परचेज कॉस्ट विल बी 17,83,841. दिस इज माय टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. नाउ लेट अस कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या तो प्रॉफिट परसेंटेज. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500 प्लस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको भी हम कितनी प्राइस पर सेल करेंगे, 2,35,000. ये दोनों सेल्स वैल्यू है. ये वो सेल्स वैल्यू है जो हमने सेल कर लिया, और ये वो सेल्स वैल्यू है जो अभी भी सेल करना बाकी है. इन शॉर्ट हमारा टोटल इन्वेंट्री टोटल कितने रुपए में सेल होगा, तो हमारा टोटल इन्वेंट्री टोटल 24,80,500 रुपीज में सेल होगा. और हमारा टोटल इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो कितना है, ये रहा मेरा टोटल कॉस्ट 17,83,841 जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया था वही है. यानी अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 17,83,841 में परचेज किया हुआ टोटल इन्वेंट्री अगर हम सेल करने चाहेंगे तो उसका टोटल सेल्स वैल्यू होगा 24,80,500. एंड हेंस आई एम गोइंग टू अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 6,96,659. नाउ इफ यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, सो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, रिमेंबर ऑन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट 696,659 अपॉन टोटल सेल्स वैल्यू 24,80,500 इन 200. सर वाई अपॉन टोटल सेल्स वैल्यू? सेल्स वैल्यू तो यही है. नो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट टोटल बोल रहे हो 696,659, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट टोटल 24,80,500 के सेल्स वैल्यू के ऊपर आया हुआ है. सो अल्टीमेटली माय फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज इज 28.09%. इट्स अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स वैल्यू. एंड हेंस फाइनली if you want to calculate the cost of closing stock, it is very easy for you now. Selling price of closing inventories,
तो सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल इन्वेंट्रीज इज 2,35,000. इस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट परसेंट डिडक्ट कर दीजिए, इट्स 28.09%, विच कम्स टू 66,012 रुपीज. सो माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी 1,68,988 rupees. I hope you are able to understand this method in a nice way. Try to solve many more questions using this way. Thank you, friends.